بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم دیں گے اپنے مسیحا دجال کا ساتھ۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے۔ دوستو، حدیث کی سبھی کتابوں میں یہ دلوں کو چھو جانے والا واقعہ ضرور ملتا ہے کہ ایک مشہور صحابی جن کا نام حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ سمندر میں دجال سے جا کر ملے تھے اور دجال نے ان سے 3 نشانیاں پوچھی تھی کہ جو آج ہر طرح سے پوری ہو چکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک ناؤ پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف نکلے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر سکے۔ وہ صحابی خود فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 آدمی دھیرے دھیرے اپنی ناؤ سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن ایک رات اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور ہماری ناؤ موجوں کے حوالے ہو گئی۔ وہ سمندری طوفان اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہوا جدھر کی بھی چلتی ہماری ناؤ ادھر کو ہی چلنے لگتی۔ ہمیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سمندر کی ہر تھپیڑ جب بھی ہماری ناؤ سے آ کر ٹکراتی تو ہمیں یہ خوف رہتا کہ ہماری ناؤ اب الٹ کر تباہ ہو یا تب جانے کی کوئی امید نہیں بچی تھی۔ 1 مہینے تک ہماری ناؤ اسی طرح سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ محلہ نے بھی مایوس ہو کر ناؤ کو چلانا چھوڑ دیا۔ 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا۔ اچانک ایک صبح ہمیں سمندر ہی میں بہت دور کچھ پیڑ نظر آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پیڑ سمندر کے بیچ میں لگا ہو۔ انہیں دیکھ کر ہمیں اندر زندگی کی ایک امید جاگ گئی، کیونکہ سمندر کے بیچ پیڑوں کا مطلب صاف تھا کہ وہاں کوئی آئس لینڈ مطلب ٹاپو ہے کہ جس پر پناہ لے کر ہم اپنی زندگی بچا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم نے اپنی ناؤ کو اسی ٹاپو کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ہماری ناؤ اس ٹاپو سے جا کر لگی۔ وہ سمندر کے بیچ ایک بہت گھنا جنگل تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے پیڑ لگے تھے۔ شام ہونے کو قریب تھی۔ سورج ڈوبنے ہی والا تھا کہ ہم اس سے پہلے ہی اس سمندری ٹاپو کے پاس پہنچ گئے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ابھی ہم سبھی لوگ ناؤ سے اتر ہی رہے تھے کہ اچانک جنگل کی طرف سے ہمیں بڑی عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہمارے سامنے ایک بڑا ہی عجیب سا جانور آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے جسم پر اتنے زیادہ بال تھے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے اور پیٹھ کدھر ہے۔ اس جانور کو دیکھتے ہی لوگوں نے اس پر لعنت بھیجی۔ ہم بھی سما کر ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہو گئے، کیونکہ پہلے ہی ہم سمندری موجوں کا شکار بن چکے تھے اور اب اس جنگل میں ہمارے سامنے ایک نئی مصیبت آ کھڑی ہے۔ وہ عجیب سا ڈرانا جانور اچانک ہم انسانوں کی زبان بولتے ہی کہنے لگا کہ اے لوگو، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تو اس جانور کو انسانی زبان میں بات کرتا دیکھ ہمارا ڈر اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن ہم نے ہمت کر کے اسے جواب دیا کہ ہم آپ کے علاقے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لیکن سمندر میں ہماری کشتی بھٹک گئی اور ہم 1 مہینے تک ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ آخر میں ہمیں دور سے یہ ٹاپو نظر آیا تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ وہ صحابی حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمت کر کے اس جانور سے پوچھا کہ آخر تو کون ہے اور اس وقت ہم کس جگہ پر ہیں؟ تو اس جانور نے جواب دیا کہ میں جاسوس ہوں۔ تو حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آخر تو کس کا جاسوس ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جس کا جاسوس ہوں وہ تم لوگوں سے بہت زیادہ ملنے کا شوق رکھتا ہے، اس لیے تم مجھ سے ڈرو نہ بلکہ میرے ساتھ چلو، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سبھی 30 لوگ اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ جانور ہمیں گھنے جنگلوں کے بیچ عجیب راستے سے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پرانا محل آ گیا کہ جو اونچے اونچے گھنے پیڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔
उस जानवर ने हमसे इशारा करते हुए कहा कि तुम लोग इस महल में दाखिल हो जाओ। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम सभी लोग हिम्मत करके अंदर दाखिल हो गए। अचानक हमने एक बहुत ही डरावनी शक्ल का बड़ा सा इंसान मोटी मोटी जंजीरों में जकड़ा देखा। वो जंजीरों से खुद को छुड़ाने के लिए इतनी ज़ोर से छलांग लगाता कि महल की छत को जाकर छू लेता, लेकिन उसकी जंजीर न टूटती। वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसे देखकर हम सभी के लिए जिस्म कांपने लगे। उसी खौफ व दहशत में हमने उस इंसान पर लानत भेजी और कहा कि आखिर तुम कौन? तो सामने जंजीरों में जकड़े शैतानी इंसान ने जवाब दिया कि पहले तुम लोग बताओ कि आखिर तुम कौन हो। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने अपने सारे हालात बयान किए कि हम सभी लोग आपके इलाके से मदीना जा रहे थे कि रास्ते में हमारी कश्ती भटक गई और 1 महीने इधर उधर भटकते रहे। बाद हम तुम्हारे पास इस टापू पर पहुँचे हैं और तुम्हारे जासूस से हमारी मुलाकात हुई, तो वो हमें लेकर तुम्हारे पास लेकर आया। उस जंजीर में जकड़े इंसान ने कहा कि मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा। पहले तुम मुझे मेरे 3 सवालों का जवाब दो, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ठीक है, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। तो उस इंसान ने कहा कि बताओ आखिर बैसान के पेड़ों पर फल आते हैं या नहीं। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, उस पर फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही उस पर फल आना बंद हो जाएंगे। उसके बाद उसने दूसरा सवाल किया कि आखिर बताओ मशहूर नदी बुहेरा तबरिया में पानी बचा है या नहीं। तो सहाबी फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि हाँ, उसमें पानी मौजूद है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द ही वो पानी सूख जाएगा। और फिर आखिर में उसने तीसरा सवाल करते हुए कहा कि मुझे बताओ कि आखिरी क्या नबी इस दुनिया में आ चुके हैं। तो हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि हाँ, वो तशरीफ़ ला चुके हैं और हम उन्हीं से मिलने मदीना जा रहे हैं। सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने उसे ये बात बताई कि आखिरी नबी आ चुके हैं, तो वो इतना ज़्यादा खुश हुआ कि उछलकर छत को जा लगा। और फिर उसने बहुत डरावनी तरह हंसते हुए कहा कि अब बहुत जल्द ही मैं बाहर निकलने वाला हूँ। और फिर उस डरावने इंसान ने अपने बारे में बताया और कहा कि मैं दज्जाल हूँ, बहुत जल्द ही मुझे आज़ाद किया जाएगा और सारी दुनिया पर मेरा राज होगा। वो सहाबी हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम अपनी नाव पर सवार हुए और कई महीनों के सफ़र के बाद हम मदीना पहुँचे। रात का वक्त था, इसलिए हम सभी 30 लोग मस्जिद में जाकर बैठ गए। सुबह फजर से पहले जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो हमने आपको अपने ऊपर बीती वो पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारी कश्ती भटकती और हम दज्जाल से जाकर मिले। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम सभी को बहुत अच्छी तरह एक तरफ बिठाया और फिर फजर की नमाज पढ़ाने के बाद मुस्कुराते हुए मेंबर पर आकर बैठ गए। सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा इकराम से फरमाया कि देखो, मैं तुमसे कहा करता था कि दज्जाल इसी दुनिया में मौजूद है। ये देखो, तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे पास यमन से आए हैं और उनकी मुलाकात समुद्र में दज्जाल से हुई है। और फिर हज़रत तमीमुद्दारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पूरा किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सुनाया। आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारते हुए कहा कि दज्जाल मेरे तैबा मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, तेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता, मेरे तैबा में दाखिल नहीं हो सकता। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशरिक़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दज्जाल इस वक्त मशरिक़ में है,
इस वक्त मशरिक़ में है। दोस्तों, दज्जाल के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा आप सबने सहाबा इकराम को डराया और उसकी एक एक चीज़ बयान फरमा दी कि आखिर उसकी आंखें कैसी होगी, उसका चेहरा कैसा होगा, वो लोगों को कैसे गुमराह करेगा और ज़मीन पर कितने दिनों तक रहेगा, और से लोग उसके फितने से बच पाएंगे और कौन कौन से उनके फितने का शिकार हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया कि दज्जाल एक जवान आदमी होगा, वो एक आँख से काना होगा और दूसरी आँख भी उसकी कुछ खराब होगी, उसकी दोनों आँखों के बीच मतलब काफिर लिखा होगा। कोई चाहे पढ़ना जानता हो या ना जानता हो, वो भी उसे पढ़ लेगा। दज्जाल का सीना चौड़ा और थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसा होगा, उसके बाल घुंघरियाले होंगे। एक हदीस में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले सारी दुनिया में बहुत ज़्यादा भुखमरी आम हो जाएगी, न आसमान से बारिश होगी और ना ही ज़मीन से एक दाना उगेगा। दज्जाल अपने साथ खाने व पानी की नहरें लेकर चलेगा, उसके पास जन्नत व जहन्नुम भी होगी। जो उसको खुदा मान लेगा तो वो उसके लिए खाना पानी सब कुछ भर देगा, और जो उसका इनकार करेगा तो दज्जाल को उसे भूख व प्यास में तड़पता छोड़ देगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल अस्फहान से निकलेगा, और दोस्तों अस्फहान इस वक्त इज़राइल में मौजूद ही एक जगह है कि जिसे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़माने में अस्फहान कहा जाता था। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिनों तक रहेगा। जब वो आएगा तो एक दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, और फिर बाकी दिन आम दिनों की तरह होंगे। दज्जाल हवा में बिजली की तरह उड़ेगा और दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त दज्जाल आएगा तो तुम उसके पास ना जाना, बल्कि उसका नाम सुनकर पहाड़ों व जंगलों की तरफ भाग जाना, वरना तुम अपने ईमान का सौदा कर बैठोगे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल सारी दुनिया पर राज करेगा, लेकिन मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। वो मदीना के बाहर जाकर जिस वक्त खड़ा होगा तो मदीना में 3 जलजलों के झटके आएंगे कि जिसकी बदौलत जितने भी मुनाफिक व काफिर मदीना में छुपे होंगे वो सभी डर कर मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल से जाकर बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल से लश्कर में शामिल हो जाएंगे। कुछ रिवायतों में मालूम होता है कि दज्जाल बैतुल मक़दिस में भी दाखिल नहीं हो सकता। हदीस में आता है कि दज्जाल के साथ रोटी व खाने के पहाड़ होंगे, जन्नत व जहन्नुम भी अपने साथ लेकर चलेगा, लेकिन हकीकत में जिसे वो जन्नत कह रहा है वो अंदर से जहन्नुम होगी, और जिसे वो जहन्नुम कह रहा है वो अंदर से जन्नत होगी। जब वो भी नेक बंदा दज्जाल का इनकार करेगा तो उसे वो उठाकर अपनी जहन्नुम में डाल देगा। लोगों की नज़र में तो वो इंसान जहन्नुम में पड़ा नज़र आएगा, लेकिन हकीकत में वो जन्नत में मज़े होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल का साथ देने वाले यहूदी लोग होंगे और यहूदियों के पीछे दूसरी कौमें भी दज्जाल को अपना खुदा मानती चली जाएंगी। इसलिए दोस्तों आज हम देख सकते हैं कि यहूदी दिन रात इसी कोशिश में हैं कि किसी तरह गजा को ख़त्म करके मस्जिद अक्सा को गिरा दिया जाए और वहां अपना हैकले सुलेमानी बनाकर अपने मसीहा दज्जाल को निकालने की तैयारी की जाए, क्योंकि उनका मानना है कि जिस दिन भी हमारा हैकले सुलेमानी बनाकर तैयार हो जाएगा तो उसी दिन हमारा असली खुदा दज्जाल आ जाएगा और फिर हम सब उसके साथ मिलकर सारी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों की दज्जाल से हिफाजत फरमाए और फ़िलिस्तीन मुसलमानों और वहाँ के बच्चों की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हमें भी उनकी मदद करने वाला बना दे।